Good morning, ladies and gentlemen. Hello and welcome to the Morning News Show, where we bring you the latest headlines and insightful stories to kickstart your day. I'm Kuina Sharma and you are watching CNN News 18. First up, we are discussing Parliament's security breach, where 6 people are under scanner for the breach of Parliament security, while 4 have been arrested. The 5th, Lalit Jha, is being questioned and the identity of the 6th person continues to remain undisclosed. Now, police is probing if the group has been in touch over the last few years over social media. Initial probe suggests that they were all a part of social media group inspired by Bhagat Singh. Now, police officials have also said that the group possibly carried out a recce of the parliament before the Wednesday's act. Now, the attempt to seek a visitor pass through MP Pratap Simha has also been for the last 3 months. We are at Vijayanagara in Mysuru, near the residence of one of the individual who breached the security at the parliament today, Manoranjan. And I'll ask my VJ to pan the camera and show you the visuals bringing in from the residence of Manoranjan in Mysuru. Right now, the police officials, the crime department is near the residence questioning the father of Manoranjan. As you can see in the visuals, the father of Manoranjan, Mr. Devraj, is being questioned by the crime department. Earlier this day, his father, Manoranjan's father, Devraj, said that his son was is an engineering graduate from engineering college in Bengaluru, and he graduated in the year 2014-15, and he wasn't interested in any work. Sometimes he used to work with his father, and he also revealed that he used to travel to Delhi and Bengaluru very frequently. But his father also says that he was not aware of the fact of him being in such activities. He was also quite shocked to hear about this particular activity today, wherein he breached the security at the parliament with smoke canisters today. So right now we are bringing you the visuals from his residence. The police officials, the crime department are here questioning father of Manoranjan. So the police officials have also been stationed here. Around 4 to 5 police officials, including constables and few officials from the crime department, have been stationed here. Earlier in the day, DCP of Vijayanagara division also arrived here. He sought information particular in relation to the activities of the individuals. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ನಾವು ಅಮಾಯಕರು, ಆಯ್ತಾ ಸರ್. ಈಗ ಪಾಪ ಈಗ ನೀವು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉತ್ತರನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರು, ನಾನು ಯಾವ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೈತೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನು ನಡೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೀಡಿಯಾದ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ, ಏನು ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿದೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನಡೀತದೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಪಾಪ ನೀವು ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್. ಏನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ಅವರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್. भैया बहुत शुक्रिया बात करने के लिए हमसे. पहले ये बताइए नीलम जी, कब से यहाँ आई थी, आखिरी बार कब यहाँ आई थी और आखिरी क्या इन्फॉर्मेशन थी आपके पास? ये परसों आई थी, हमारे पास मिलने के लिए आई थी, और उसका एक वो था क्या, वो फार्म भरने के लिए आई थी. उसका फार्म में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो वो भरा नहीं जा रहा था, तो उसको लेके आई थी वो, कि फार्म भरने के लिए बुलाया, फोर्सेट वाले भाई ने दोबारा बुलाया मेरे को. तो वहाँ से फार्म भरवा के वो सीधा हिसार चली गई थी, क्योंकि वो 6-7 महीने हो गए हमने हिसार ही छोड़ कर स्टडी करने के लिए, पेपरों की तैयारी कर रही है वो. तो अब या वो आई थी 2-3 तारीख को पेपर था उसका, एक जो स्टेट था उसका, जो वो हो गया था, एक्सपायर हो गया था स्टेट, 5-6 साल हो गए थे उसको, फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर दिया था उसने. तो वो कहीं यूज में आया नहीं, उसका वैकेंसी निकली नहीं, तो वो एक्सपायर हो गया. तो अब उसका दोबारा पेपर दिया उसने, 2 तारीख का था, पता नहीं 3 तारीख का था. हमें तो आज 2:30-3 बजे न्यूज़ से पता चला है कि वो ऐसे ऐसे दिल्ली पहुंच रही है, हमें तो पता ही नहीं था. अच्छा, ये कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं, ट्विटर पे वीडियोस भी चल रहे हैं ऐसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी कोई एफिलिएशन था, या पहले भी किसी धरने में या प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया, हिस्सा लिया है. इसमें कुछ सच्चाई है? सिर्फ किसान आंदोलन में उसका हस्तक्षेप रहा है. किसान आंदोलन में हम भी जाते थे, सभी जाते थे, मेरे गांव के लोग भी जाते थे, लेकिन और कोई पार्टी, किसी भी पॉलिटिक्स, किसी कोई तरह कोई भी वो नहीं है. ये सिर्फ कहने की बातें हैं. पॉलिटिकली उतनी एक्टिव नहीं, सिर्फ किसान आंदोलन में ही गए थे, वो तो सभी गाँव के जाते थे हम.
आज से कई साल पहले 2001 में भी आज ही के दिन संसद भवन पर हमला हुआ था और उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो आज उसकी बरसी थी और आज ही के दिन एक बार फिर से संसद भवन की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई और इस चूक की जो पटकथा है वो गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर माने तो गुरुग्राम के 7 एक्सटेंशन के इस मकान में जो विक्की नाम का जो एक व्यक्ति था वो यहाँ रहता था अपने परिवार के साथ और आरोप है कि इसी के घर पर वो सभी जो हमलावर है एक तरह से जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया संसद भवन के अंदर और बाहर वो सभी लोग इसी मकान के अंदर रुके थे और यहीं से वो दिल्ली गए थे। तो आरोप यही है कि वो सब लोग यहाँ पर विक्की जो एक युवक है उसके घर पर रुके थे। कई सालों से वो गुरुग्राम के इसी मकान में रहता था और जब इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके बाद जो पूछताछ हुई उसी पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इस घर के अंदर रहने वाले विक्की और उसकी पत्नी दोनों को ही हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है। उनको यहां से लेकर के जा चुकी है। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो अंदर मौजूद है और इस घर के अंदर फिलहाल बताया जा रहा है कि विक्की की जो बेटी है वही अकेली मौजूद है, जिससे कि अब गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि सभी जो लोग हैं वो यहीं मौजूद थे। ये भी कहा गया है कि यहाँ पर वो 6 लोग आए थे करीब, जो कि और उसके बाद वो लोग 6 के 6 लोग यहाँ से गए थे, जिन्होंने संसद भवन के अंदर ना सिर्फ अंदर घुसे बल्कि बाहर भी 2 लोगों ने एक तरह से स्मोक जो क्रैकर्स है उनका इस्तेमाल किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी चूक आज संसद भवन के अंदर हुई थी, जिसके ऊपर अब कहा यही जा रहा है कि ये सारी पटकथा गुरुग्राम के इसी मकान में लिखी गई थी। इस वक्त हम लोग आलमबाग इलाके में ही मौजूद हैं जहां का सागर शर्मा रहने वाला है। हम उसके घर पर हैं। यहाँ पर 4 लोगों का परिवार है, माता पिता हैं, एक छोटी बहन है। उनकी छोटी बहन उनकी हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर लेते हैं। आप लोग परिवार में कितने लोग हैं और भैया जो सागर है वो क्या करते हैं? माता पिता आपके क्या करते हैं? पापा कारपेंटर है और मम्मी तो घर में रहते हैं हाउस वाइफ, और भाई ई रिक्शा चलाता है। तो आप लोगों को कुछ मालूम है कि सागर कब कहाँ गए, घर पे क्या बता के गए हैं? मुझे तो बस यही पता था, वो जब मम्मी से बता रहा था तब धरना प्रदर्शन के लिए जा रहा है वो दिल्ली, उसने यही बताया था बस, बाकी मुझे तो नहीं कुछ पता। क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी और पॉलिटिकल या सोशल एक्टिविटी में वो आगे रहता है? नहीं, मुझे ये नहीं पता है। 12th किया है उसने, बस 12th पास है बस, और बाकी वो ई रिक्शा चला रहा है। 2-3 महीने हो गया उसको रिक्शा चलाते। बाकी वो पहले बेंगलोर में रहता था, उसका कोई दोस्त है बेंगलोर में रहता है तो वहीं रहता था, कमाता था वहाँ पर। वहाँ से भी जल्दी आया रक्षाबंधन से पहले। मतलब अभी लखनऊ आए हुए मुश्किल से 4 महीना हुआ होगा। हाँ, वो रक्षाबंधन से पहले आया। दोस्त को हमने आज तक देखा ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कहाँ का था? मतलब उधर का ही था, इधर का हाँ था? हाँ, कहाँ बेंगलोर, और हम बुढ़े आदमी है, ना जा सकत ना आ सकत। यहाँ का कोई दोस्त नहीं है। हाँ, कब गया यहाँ से दिल्ली? ये शायद परसों गया है। किसी से कुछ बता के गया ना दिल्ली? अरे हमें कहाँ बताएगा, बताए हुए तो अपने बाप को माँ को, हम अलग रहते वो अलग रहते, इतना हमें मालूम है। ये परसों गया है। किसी झगड़ के गया हो? झगड़ा नहीं। यहाँ क्या करता था? यहाँ क्या करता था? अरे यहाँ कोई हुनर नहीं तो वो टैक्सी चलाना या रिक्शा। दिल्ली में कोई रिश्तेदार रहता जहाँ गया है? दिल्ली में इनका कोई रिश्तेदार नहीं, को आज तक नहीं बिटिया जानकारी है कि इसके कौन से दोस्त है, क्या करता है क्या नहीं करता है। आप यही कहते थे तुम कब बड़े होगे कुछ करोगे कमाओगे।